نہ میں موت کا ہوں طالب، نہ تلاش زندگی ہے، تیرے در پہ حاضری ہو، یہ لگن لگی ہوئی ہے، تیرے در پہ حاضری ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق نبوی درد معاصی کی دوا ہے، عشق نبوی درد معاصی کی دوا ہے، ظلمت قدائے دہر میں وہ شمع خدا ہے، اے ابر کرم تیری آمد رونق عالم، یہ گلشن ہستی تیرے لیے ہی بنا ہے۔ معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، یہاں کی حاضری اور یہ شرکت قرآن کریم کی نسبت پر ہے کہ ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ جس کی خوشی میں، جس کی تقریب میں ہم سب جمع ہیں، جلسہ اب بالکل آخری منزلوں کی طرف ہے، بہت جلد یہ جلسہ مکمل ہوگا اور سال بھر کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ آپ حضرات یقیناً جلسے کے لیے فکر مند تھے اور آپ اپنے جلسے کو دیکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے دعائیں آپ حضرات کر رہے تھے۔ باضابطہ جلسوں کا سلسلہ جو رمضان المبارک سے پہلے شروع ہوا وہ سلسلہ چلتا رہا، پھر عید کے بعد یہ سلسلہ چلا اور تقریباً یہ ابھی اگلے مہینے تک، اور اب تو سلسلہ جلسوں کا ایسا شروع ہو گیا کہ پورے سال ہی جلسے ہوتے رہتے ہیں، کہیں کسی فصل پر ہوتا ہے اور کہیں جو ہے سال کے بالکل اخیر میں رمضان مبارک سے پہلے جلسے ہوتے ہیں، کبھی عید کے بعد ہوتے ہیں، تو یہ جلسہ سلسلوں کا مسلسل چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حاضری کو، جمع ہونے کو، سننے سنانے کو اللہ قبول فرما لے۔ بہرحال مومن کو چاہیے کہ وہ ہر چیز سے عبرت حاصل کرے، ہر چیز سے نصیحت حاصل کرے۔ ہم لوگ یقیناً دیکھ رہے ہیں اپنے متعلقین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، اور اس کا ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے اور ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ جانے والوں سے ہم نصیحت نہیں پکڑتے، عبرت حاصل نہیں کرتے، ورنہ تو یہ سوچنا چاہیے اور ذہن جو ہے اس بات کی طرف آمادہ ہونا چاہیے کہ بھئی جس طرح یہ ہمارے بھائی، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ دنیا سے چل بسے ہیں اور یہ دنیا سے وقت پورا کر کے رخصت ہوئے ہیں، ہمیں بھی ایک دن رخصت ہونا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے، پھر آدمی اسی طریقے سے، اسی اعتبار سے اپنی تیاری کرے۔ یہ دنیا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس دنیا میں ہمیں بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا،
आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़े मोहसिन आज़म हैं। अल्लाह के बाद में अगर किसी का हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है तो वो ज़ात गरामी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के बाद में आपका हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है। आपकी बरकत से दुनिया बनाई गई, आपकी बरकत से इस निज़ाम आलम को सजाया गया। आप दुनिया में अगर तशरीफ़ न लाते, हदीस कुदसी है, अल्लाह खुद फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं ज़मीन और आसमान को पैदा न करता। ये दुनिया का निज़ाम, ये दरियाओं में रवानी, ये सूरज में रोशनी, ये सितारों में चमक, ये हमारा चलना फिरना, ये उठना बैठना, ये हमारे जलसे, ये हमारे प्रोग्राम, ये मेरे भाई दुनिया की सारी बहारें, ये सब बरकत है आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी बरकत से अल्लाह ने इस निज़ाम को बनाया। आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, दुनिया से रुखसत हुए, आपने दुनिया से पर्दा किया, तो बताओ अब इस दुनिया में कौन रहने वाला है? कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए हमें आखिरत की तैयारी करनी है, हमें अपनी ज़िंदगी में तक़वा पैदा करना है, परहेज़गारी ज़िंदगी में लानी है। तमाम गलत कामों से, तमाम बुराइयों से, तमाम फहश कामों से और तमाम तर बुराइयाँ जो यकीनन हमारी ज़िंदगी में दाखिल हैं, हमारे माशरे में दाखिल हैं, हमारे घरों में, हमारे घर के बाहर, हमारे घर के अंदर और हमारी बस्तियों में, हमारे इलाकों में, हमारे माहौल में जो तरह तरह की खराबियां आज पैदा हुई हैं, यकीनन हमें उनसे दूर होना है और उन तमाम तर कमजोरियों को, खराबियों को हमें ख़त्म करना है। यकीनन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कुरान की इस आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं है। जो भी इस दुनिया में आया है और इस दुनिया में जिसने अपना वक्त बसर किया, अपना वक्त गुजारा और इस दुनिया में रहकर मेरे भाइयों सारे काम उसने किए, नहीं मेरे भाइयों, किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। किसी अरबी को किसी आजमी पर और किसी मालदार को किसी गरीब पर और किसी फकीर को किसी अमीर पर किसी को कोई फौकियत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। अल्लाह के नज़दीक मोहतरम वो है जिसकी ज़िंदगी में तकवा है, जिसकी ज़िंदगी में परहेजगारी है। अगर ज़िंदगी में नेकियां नहीं है, ज़िंदगी में नमाजें नहीं है, अल्लाह उसके रसूल का तरीका ज़िंदगी में नहीं है, खौफ खुदा और खौफ आखिरत जिसकी ज़िंदगी में पैदा न हुआ, यकीनन मेरे भाई इस दुनिया में उसके ज़िंदगी गुजारने से और इस दुनिया में उसके रहने से कोई फायदा उसे हासिल नहीं होगा। इसलिए चाहिए हम सबों को ये गौर करनी चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए और अपने अंदर ये गौर व फिक्र करनी चाहिए और हमें अपना मुहासबा सुबह शाम करना चाहिए और ये गौर हमें अपनी ज़ात के अंदर करनी चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी को कितना बदला है, कितनी हमने तब्दीली पैदा की है, कितनी अच्छाइयाँ हमारी जिंदगी में आई है और कितनी गलत चीजें जिंदगी में दाखिल हुई हैं। वक्त तो गुजर रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हजरत मुफ्ती फारूक साहब अलैहि रहमा यकीनन मेरे भाइयों अक्सर व बेशतर अपने प्रोग्रामों में और जहाँ भी जलसे में तशरीफ ले जाते, जहाँ भी आप तकरीर फरमाते, तो अक्सर व बेशतर इस शहर को पढ़ा करते थे। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उम्र का कुछ हिस्सा गुजर गया, कुछ हिस्सा बाकी है, वो भी गुजर जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों हमें अपनी जिंदगी में अगर खौफ खुदा पैदा न हुआ, खौफ आखिरत हमने पैदा न किया, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर अगर जिंदगी में हमारी पैदा न हुआ, तो हमारी जिंदगी गुजारने से और हमारी इन गानाइयों से और हमारी जिंदगी गुजारने से कोई फायदा हमें हासिल होने वाला नहीं है। यकीन है मेरे भाइयों इन जलसों का मकसद भी यही है। ये जलसे हमारे जो होते हैं और इन जलसों को सजाया जाता है और इन जलसों को मुनाकिद किया जाता है, यकीनन मेरे भाइयों इन जलसों में हमारी रूह की ताजगी का सामान पैदा होता है, हमारी रूह का, हमारी रूहानी ग़िज़ाएं इन जलसों में तैयार होती हैं। उस ग़िज़ा को हमें हासिल करना चाहिए। हजरत मुफ्ती साहब, हमारे हजरत मुफ्ती रियासत साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान में मौजूद हैं और साल से आपके दरमियान में हाजिरी का मौका मिलता है। जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आपका
बड़ी खूबसूरती के साथ मुनाकिद होता है और बड़े एहतराम से और बड़ी यकसुई से आप हजरात आकर अपने जलसों में बैठते हैं। यकीनन मेरे भाइयों, इन जलसों से हमें इबरत हासिल करनी है। इन जिंदगियों से, इन जलसों से हमें अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करनी है। अगर जलसों से, उलमा के बयानात से, उलमा की तकरीरों से और उलमा की दर्स व तदरीस से और उलमा की इन बातों से, कुरान और हदीस की इन तमाम तर बातों से अगर जिंदगी में तब्दीली पैदा न हुई और जिंदगी में बदलाव पैदा न हुआ और जिंदगी में मेरे भाइयों तब्दीली न आई, तो फिर इन जलसों से और इस सुनने सुनाने से कोई फायदा हमें हासिल नहीं होने वाला है। मैंने इस वक्त में आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी, उस ताल्लुक से मुझे एक आध वाक़या बयान करना है और उसके बाद इंशाअल्लाह आप हजरात से रुखसती है, क्योंकि निज़ाम बहुत लंबा है, उलमा मौजूद हैं, उनकी तकरीरें और उनकी बातें आप हजरात को सुननी है। हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब मुबल्लिग आज़म अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ रखते हैं, उनके बयानात और उनकी तकरीरें हम सबों को सुनना है। इंशाअल्लाह ये निज़ाम आपका बहुत जल्द मुकम्मल होगा। हजरत उबई बिन काब, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने एक मरतबा हजरत उबई बिन काब से मालूम किया कि अच्छा ये बताओ तकवा किसे कहते हैं, तकवा ये क्या चीज़ है, तकवा किसे कहते हैं। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन से हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, पहले ये बताइए कि आपका गुजर कभी ऐसे रास्ते से हुआ है जो रास्ता तंग हो, जो रास्ता बहुत ज्यादा तंग हो, चारों तरफ झाड़ियां हो, चारों तरफ कांटे हो और कांटों भरा रास्ता हो, ऐसे रास्ते से कभी आपका गुजर हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐसा बारहा हुआ है, मैंने सफर का इरादा किया और मैं रास्ते में चल रहा हूँ और बहुत सी मरतबा और बहुत दफा ऐसा रास्ते में ऐसा मेरे साथ पेश आया कि रास्ता बहुत तंग है और चारों तरफ कांटे हैं और चारों तरफ जो है बड़ी उलझने हैं, ऐसा तो बारहा मेरे साथ हुआ। तो हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हजरत बस इसी का नाम तकवा है। ये दुनिया जो है ना, ये भी कांटों भरा रास्ता है, इस दुनिया में भी चारों तरफ कांटे हैं। मेरे भाइयों, कहीं गानों की आवाजें हमारे कानों से टकरा रही हैं, कहीं मेरे भाइयों गलत चीजों पर नजरें पड़ रही हैं, गैर महरम पर हमारी नजरें पड़ रही हैं। कभी बाजारों में गए तो चारों तरफ मेरे भाइयों औरियानियत है, नंगापन है, बेहयाई है, फहाशी है, सारे गलत काम हमारे मेरे भाइयों माशरे में वो दाखिल हैं और मेरे भाइयों आंखों के गुनाह हो रहे हैं, कानों के गुनाह हो रहे हैं और कानों से मेरे भाइयों गानों की आवाजें टकरा रही हैं और नजरें हमारी गलत चीजों पर पड़ रही हैं। ऐसा तो इस जिंदगी में हमारी ये सारी चीजें दाखिल हैं। तो हजरत ने फरमाया, ये दुनिया ये कांटों भरा रास्ता है। हजरत ने फरमाया, हजरत उबई बिन काब ने मालूम किया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से, ए अमीरुल मोमिनीन, जब आप ऐसे रास्ते से गुजरे तो आप उस रास्ते से कैसे गुजरे? जब आप ऐसे रास्ते से जा रहे थे, ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे, तो आपने तरीका क्या इख्तियार किया? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने अपने दामन को समेटा और बड़ी यकसुई के साथ और अपने आप को समेट कर ऐसे रास्ते से गुजर गया। तो हजरत ने फरमाया कि हजरत बस इसी का नाम तकवा है। ये दुनिया ये कांटों भरा रास्ता है, इस दुनिया में भी बड़ी यकसुई के साथ, बड़े एहतराम के साथ अपने आप को समेट कर, अपने आप को यकसा करके यकसुई के साथ और अपने आप को समेट कर दुनिया से आदमी गुजर जाए और इस दुनिया को गुजार ले और दुनिया का वक्त मेरे भाइयों ये गुजर जाए और वहां पहुंच जाए जो असल जिंदगी है। असल जिंदगी वो आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। ये दुनिया ये फना होने वाला घर है, इस दुनिया को बका नहीं है, इस दुनिया को बका हासिल नहीं है, ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है। आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में न रहे, हजरात सहाबा न रहे, ताबईन न रहे, तबे ताबईन न रहे, आइम्माए मुज्तहिदीन न रहे, तमाम बुजुर्गाने दीन इस दुनिया से रुखसत हुए। हमारे वालिदैन गए, हमारे आबा व अजदाद गए, हमारे रिश्तेदार गए, हमारे मुताल्लिकीन इस दुनिया से रुखसत हुए। मेरे भाइयों, हमें देखना है कि इस दुनिया से उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी और कैसे उन्होंने वक्त को गुजारा। मेरे भाइयों, अच्छा वक्त गुजरा, अच्छाइयों में गुजरा,
गुजरा, नेकियों में गुजरा, तो हमें भी इसी तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जिंदगी गुजारने के सारे आदाब, सारे तरीके, जिंदगी गुजारने के सारे आदाब, जिंदगी गुजारने के सारे तरीके और मेरे भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी में जिंदगी गुजारने के सारे तरीके मौजूद हैं, जिंदगी गुजारने के आदाब मौजूद है। कैसे जिंदगी गुजरे, कैसे मेरे भाइयों बड़ों का एहतराम हो, कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल हो, कैसे आपकी जिंदगी को मेरे भाइयों हम अपने सामने रखकर कैसे हम जिंदगी गुजारे, ये सारे तरीके, ये सारी बातें, ये सारी तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें मिलती है। लेकिन मेरे भाइयों कमजोरी है हमारे अंदर, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, आपके तरीके को पसे पुश डाला। हमने दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों को और दुनिया में बेहयाई की तरीके से जिंदगी गुजारने वालों को हमने सामने रखा, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को हमने पसे पुश डाल दिया। इसीलिए दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, इसीलिए जलील हो रहे हैं, जिल्लत हमारा मुकद्दर बन चुकी है। कुरान तो बयान करता है, कुरान तो यूं कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी अगर तुम सही माना में मोमिन हो, अगर तुम सही माना में ईमान के साथ जिंदगी गुजारते हो, सही माना में ईमान के तरीके पर और ईमान पर अमल कर रहे हो, तो ये जिंदगी हमारी मुहज्जब बनेगी, मोहतरम बनेगी। अगर मेरे भाइयों जिंदगी में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने न रखा, जिंदगी में मेरे भाइयों अच्छे काम हमने न किए, तकवा तहारत जिंदगी में न आया, पाकिया जिंदगी में न आई, सफाई सुथराई अगर जिंदगी में न आई, नबी के तरीके को छोड़ा, आपकी तालीमात को छोड़ा, और मेरे भाइयों दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले जो दुनिया में मेरे भाई जिंदगी को बसर कर रहे हैं, जो मुसलमानों के ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्होंने बेहयाई को, उन्होंने नंगेपन को, उन्होंने तमाम तर बेहयाई को ईमान वालों के सामने और इस दुनिया के सामने इस तरह से पेश कर दिया कि आज दुनिया वाले चाहे मेरे भाइयों किसी मजहब से भी वो ताल्लुक रखते हो, आज मेरे भाइयों उनके तरीके पर अमल कर रहे हैं। मेरे भाइयों मुसलमानों का और ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन इस रुई जमीन पर यहूद है। कुरान बयान करता है लतजिदन्ना अशद्दन नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन इस रुई जमीन पर ये वो यहूद है। आज मेरे भाइयों हमने उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की जिनसे बचना चाहिए था, जिनसे दूरी बनानी चाहिए थी, जिनसे दूरी इख्तियार की जानी चाहिए थी, लिहाजा सारी चीजों को हमने अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माना में तक़वा तहारत के साथ, अच्छाइयों के साथ, सफाई के साथ और अपने दिलो दिमाग की साफ सफाई और सुथराई के साथ अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। मैंने आयत पढ़ी थी इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे मोहतरम वो है जिसकी जिंदगी में तकवा है, जिसकी जिंदगी में परहेजगारी है। ये तकवा क्या है मैंने अभी बताया, ये तकवा क्या है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया, हजरत उबई बिन काब से जब मालूम किया था कि ये दुनिया कांटों भरी जिंदगी है, मेरे भाई गुनाहों से बचकर, गलत कामों से बचकर, बेहयाई से बचकर, गाने बजाने से बचकर, मेरे भाई तरह तरह के गुनाह जिंदगी में दाखिल है। हमारी तकरीबात हो, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो, आज हमारी तकरीबात में, हमारी जिंदगी के हर शोबे में यहूदियों की सारी बातें आज दाखिल हो गई है। अल्लाह हम सबों की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों शादियां हो या मेरे भाइयों हाफिज कुरान की ये तकरीब हो, यकीनन सबसे बड़ा खुशी का मौका है। इससे बढ़कर ईमान वाले के लिए, कलमा पढ़ने वाले के लिए कोई खुशी नहीं हो सकती है कि उसका बच्चा हाफिज कुरान बने, उसके घर में ये दौलत आ जाए, कुरान पढ़ने वाला बच्चा, कुरान सीखने वाला बच्चा उसके घर में पैदा हो जाए। इससे बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं। लेकिन आज ये तकरीबात जो सबसे मोहतरम तकरीबात थी, सबसे मोहतरम मेरे भाइयों तकरीब थी, आज वो भी मेरे भाइयों बेहयाई की नजर हो गई। उसमें भी बहुत सारी गलत बातें ऐसी दाखिल हो गई है जिनका मैं शरीयत से, जिनका
قرآن سے، جن کا حدیث سے، جن کا میرے بھائی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم نے ابھی ایک جلسے میں حضرت مولانا محمد یامین صاحب موجود تھے، میں بندہ بھی اس جلسے میں موجود تھا۔ ایک بہت بڑا لیٹر آیا، ایک بہت بڑا خط آیا، اس پہ ساری چیزیں انہوں نے لکھ کر اس میں رقم کر کے وہ سپرد کی کہ دیکھو اچھا اس پر تقریر کی جائے، اس پر تبصرہ کیا جائے، یہ باتیں بتائی جائیں، کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ انہوں نے لکھا تھا کہ گھر میں بہت سارے بچے حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے، لیکن بہت ساری بچیاں جنہوں نے صرف ناظرہ قرآن مکمل کیا، چلو قرآن کا ناظرہ مکمل ہو جانا، قرآن کا پڑھ لینا اور بہت ساری تعلیمات کا حاصل کر لینا، قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہو جانا یقیناً محترم ہے، یہ مبارک ذریعہ ہے، اس سے مبارک ذریعہ، اس سے مبارک تعلیم دنیا میں کوئی تعلیم نہیں ہے۔ خوشی مناؤ، خوشی کا موقع ہے، لیکن بتانے والے نے بتایا، لکھنے والے نے لکھا کہ ایک گھر میں ایک بچی نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا اور اس نے بڑا پروگرام کیا، اور اتنا بڑا پروگرام کیا کہ اس پروگرام کو کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے اس نے سود پر اٹھائے، 1 لاکھ روپے بیاج پر اٹھائے اور 1 لاکھ روپے سود پر اٹھا کر اس نے دعوت کی ہے۔ کیا بتاؤ، یہ دعوت کرنا، یہ اس طرح سے خوشی کا منانا، یہ اس طرح کی تقریب میں شرکت کرنا، یہ اس طرح کی تقریب کا اختیار کرنا کیا کہاں تک جائز ہے، کہاں تک یہ صورت جائز ہے؟ میرے بھائیوں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ حضرات کو وقتاً فوقتاً جلسوں کی نسبت سے، مسجدوں کی نسبت سے، مسجدوں کے منبر و محراب اس کی نسبت سے آپ حضرات کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم سمجھنے کے تیار نہیں۔ قرآن کا پڑھ لینا، قرآن کا حاصل کر لینا، قرآن کی تعلیم سے آشنا ہو جانا سب سے بڑی تعلیم ہے، سب سے محترم تعلیم ہے، سب سے بڑا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ آپ دعوت کریں، لیکن میرے بھائیوں جیسا موقع ہو، جیسی سہولت ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی کو بھی اس کی حیثیت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اگر حیثیت ہے 10 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی، 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، حیثیت ہے 1000 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی، 1000 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن میرے بھائیوں اس حیثیت کا، اللہ کے اس دینے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔ بہت سارے لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، چاہے وہ شادی ہو، چاہے کوئی اور دوسری تقریب ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اور عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے بہت بڑی رقم خرچ کی ہے، بہت بڑا پیسہ میں نے دیا ہے۔ اس طرح ریاکاری نہ کریں، اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میرے بھائیوں 10 کی دعوت کر سکتے ہیں تو 10 کی کریں، 50 کی کر سکتے ہیں تو 50 ہی کریں۔ سود پر پیسہ اٹھا کر اب کتنے سال میں میرے بھائیوں غریب آدمی، وہ کمزور آدمی جس کی حیثیت نہیں تھی، اس نے لاکھوں روپے میرے بھائیوں بطور قرض اٹھائے اور وہ بھی سود پر اٹھائے، پھر وہ سال تک، کئی سال تک اس کا سود ادا کرے گا اور اس قرض کی ادائیگی کرے گا۔ بتاؤ میرے بھائیوں کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ ہر کام ہمارا ایسا ہو جو شریعت سے ملتا جلتا ہو، ہر کام ایسا ہو شریعت میں جس کی اجازت ہو، ہمارا ہر کام ایسا ہو جو یقیناً قرآن و حدیث سے ملتا ہوا ہو، قرآن و حدیث سے ہٹ کر، نبی کی تعلیم سے ہٹ کر، نبی کی تعلیم سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر جو بھی آدمی کام کرے گا، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر جو بھی طریقہ اختیار کرے گا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ ایک طالب علم کے تعلق سے ایک واقعہ ذہن میں آیا، ابھی 10 منٹ ہے میرے پاس، میں اس کو بتا کر اب حضرات سے رخصت ہوں گا۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ طالب علم یقیناً اس کے تقویٰ، اس کی پرہیزگاری کو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نے ایک واقعہ بیان کیا اور اس میں ایک طالب علم کے تقوی کو بیان کیا، اس کی طہارت کو بیان کیا، اس کی نیکیوں کو بیان کیا کہ دیکھو تقویٰ یہ ہے۔ ایک طالب علم ایک مسجد میں رہتا تھا، امامت کرتا تھا اور بھی بہت سارے کام پڑھنے پڑھانے کے وہ مسجد میں رہ کر کرتا تھا۔ آج کل تو ذہنیت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ لوگ مدرسے میں پڑھانے کو عیب جو ہے وہ عیب محسوس کرنے لگے ہیں۔ لوگ مدرسے میں قرآن پڑھانے کو، قرآن کی تعلیم دلانے کو عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا دیا، اس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا۔ اللہ
کے بندو، اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، آپ کو بیٹے دیے، بیٹی دی، نعمت کی شکل میں اللہ نے بیٹے دیے ہوں یا بیٹی دی ہو، آپ اپنے ہر بچے کو، ہر بچی کو، ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو سب سے پہلے دیندار بنانا۔ اگر دنیا کی تعلیمات، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی ساری تعلیمات بڑے بڑی کالجوں میں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنی دولت خرچ کر کے ساری ڈگریاں دلائی، ساری تعلیم دلائی، پروفیسر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، قرآن سے محروم رکھا، قرآن سے محروم رکھا، اللہ کے رسول کی تعلیم سے محروم رکھا، قرآن سے دور رکھا، اللہ کے رسول کی تعلیم سے اس کو دور رکھا، تو حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ جن کے نام سے یہ منصوب آپ کی ماشاءاللہ عمارت ہے، رفیق الامت منزل حضرت علامہ رفیق احمد صاحب، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ سروں پر ٹوپیاں، یہ میرے بھائیو ہمارے گھروں میں اور ہمارے ان علاقوں میں، ہماری ان بستیوں میں مدارس اور مکاتب اور علماء اور حفاظ اور قرہ، یہ سب ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اگر پیدل چل چل کر مدارس کا جال نہ پھیلاتے، اگر پیدل چل چل کر اپنے استاد محترم حضرت مولانا حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جو ان کی فکر تھی، حضرت شیخ الاسلام جب مالٹا کی جیل میں تھے اور مالٹا کی جیل میں اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو، مسلمان کیسے محفوظ رہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ گھر گھر مکتب قائم کیے جائیں، گھر گھر مدرسے بنائے جائیں، اور اسی میرے بھائیو فکر کو اور انہی ارادوں کو اور اسی فکر کو اور اسی قرآن کو حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اندر بسایا، اور ساری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی علاقہ بچا نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسا موجود نہیں ہے جہاں ان کے شاگرد اور ان کا فیض نہ پہنچا ہو۔ حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھایا، ساری ڈگریاں دلائی، سب کچھ سکھایا اور قرآن سے محروم رکھا، فرمایا کرتے تھے وہ ماں باپ دنیا میں وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے دنیا میں رہتے ہوئے یہ امید نہ رکھے کہ وہ ان کے لیے اصالہ ثواب کر دیں گے، قرآن پڑھ کر، آیت الکرسی قرآن پڑھ کر، قل هو اللہ پڑھ کر، الحمد شریف پڑھ کر ان کے لیے اصالہ ثواب کر دیں گے، نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑا انجینئر ہو، بڑا پروفیسر ہو، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، اور پھر ہم غور کریں، ہم محاسبہ کریں، ہم میرے بھائیوں اپنے اندر غور و فکر کریں، آپ کا پیسہ، آپ کی دولت دنیاوی تعلیمات پر مدرسوں سے زیادہ اور مدرسے کی تعلیم سے زیادہ اور مدرسوں کی قرآن کی اشاعت سے زیادہ میرے بھائیوں خرچ ہونے سے زیادہ دنیاوی تعلیمات پر آپ کی دولت صرف ہو رہی ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کے اس علاقے میں، آپ کی اس بستی میں، آپ کے اس علاقے میں، ہمارے ان گاؤں میں کوئی پروفیسر نظر نہیں آتا، کوئی انجینئر نہیں ملتا، کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا، کوئی پائلٹ نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں دنیاوی تعلیم کی اتنی فکر ہے اور پھر بھی آپ کوئی انجینئر نہ بنا سکے، کوئی بڑا ڈاکٹر، کیا کوئی MBBS ڈاکٹر ہے، کیا کوئی بڑا پروفیسر ہے، کیا کوئی IAS ہے، کیا کوئی IPS ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑا پروفیسر آپ نے بنایا؟ دنیاوی تعلیمات پر اے میرے بھائی بہت بڑی رقم خرچ کر کے بھی یہ دولت آپ حاصل نہ کر سکے۔ لیکن مدرسوں کو آپ یوں کہتے ہیں مدرسوں میں کچھ نہیں ہوتا، مدرسوں میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی اس بستی میں بھی، آپ کے اس علاقے میں بھی اور آپ کے دور دراز تک ہر جگہ عالم حافظ مدرسوں کی برکت سے موجود ہیں۔ آپ کا رمضان آیا، حافظ قرآن مدرسوں کی برکت سے مل گئے، مسجد میں امام مدرسوں کی برکت سے ملے، ان مسندوں پر، ان کرسیوں پر یہ علماء آئے مدرسوں کی برکت سے مل گئے، مسائل کی ضرورت پیش آئی، مسائل بتانے والے مدرسوں کی برکت سے ملے، قرآن پڑھانے والے مدرسوں کی برکت سے ملے، قرآن سکھانے والے مدرسوں کی برکت سے ملے۔ اللہ قدر دانی کی توفیق دے۔ ایک طالب علم مسجد میں رہتا تھا، طالب علم کا تقوی، بس میرے بھائیوں بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے، بس مختصر طور پر یہ واقعہ بیان کر کے آپ حضرات سے رخصت ہے۔ قرآن کی، اللہ اس کے رسول کی باتیں اصل میں اتنی ہیں کہ ان کو کہاں تک بیان کیا جائے۔ قرآن و حدیث کی باتوں کو بیان کرنا مشکل ہے، بیان نہیں کیا سکتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں رہنے والے، دنیا میں جتنے درخت موجود ہیں سب کے قلم بنا لیے جائیں، دنیا میں جتنے دریا موجود ہیں سب کی روشنائی بنا لی جائے، اور اللہ اس کے رسول کی باتیں تم لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، تمہاری زندگی ختم ہوگی، تمہاری زندگی تمہارا ساتھ نہ دے سکے گی، لیکن اللہ اس کے رسول کی باتیں نہ کبھی ختم ہوئی ہیں اور نہ کبھی ختم
ख़त्म होंगी। एक तालिब इल्म मस्जिद में रहता था, हालात ख़राब हो गए, माहौल ख़राब हो गया, कोई हादसा हो गया। हालात ख़राब होने की बुनियाद पर एक औरत अपने घर से निकलकर बाजार में आई हुई थी, कुछ सामान लेने के लिए। माहौल ख़राब हुआ, हालात ख़राब हुए, रात हो गई। औरत ने मुनासिब समझा कि बराबर में मस्जिद मौजूद है, मैं उसमें क़याम कर लूँ। क़याम के इरादे से और आराम के इरादे से और मेरे भाइयों उस माहौल से और मेरे भाइयों शर से बचने के लिए, हालात से बचने के लिए वो मस्जिद के करीब आ गई, मस्जिद में अंदर घुस गई। मस्जिद में दरवाजे में जब दाखिल हुई, नजर पड़ी एक बच्चे पर, वो बैठा हुआ है, वो तालिब इल्म था, मस्जिद का इमाम था, मुताले में मसरूफ था, अपने काम में लगा हुआ था। वो औरत मस्जिद में दाखिल हुई, नजर पड़ी उस तालिब इल्म पर और उसकी नजर पड़ी उस पर, तो उसने मालूम किया तुम यहाँ मस्जिद में क्यों आई हो। तो उस औरत ने कहा कि देखो हालात ख़राब हैं, माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है, कुछ हालात अचानक बिगड़ गए हैं और मुझे अंदेशा है कि मुझे परेशानी हो जाएगी, मुझे तकलीफ होगी, मैं घर तक सही सलामत नहीं पहुँच सकती, इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं मस्जिद में क़याम कर लूँ, फिर माहौल पुरअमन हो जाएगा तो मस्जिद से निकल कर मैं घर चली जाऊँगी। उस तालिब इल्म ने कहा कि ठीक है, माहौल थोड़ा सा ख़राब है, तुम ऐसा करो उधर कोने में बैठ जाओ और वहां जाकर अपना बैठ जाओ और आराम करो। उसके बाद जब माहौल पुरअमन होगा तो मस्जिद से निकलकर अपने घर पे चली जाना। रात का वक्त था, सुबह करीब हुई, रात का वक्त गुजरा, सुबह करीब आई तो वो तालिब इल्म बेचारा वो रात भर मुताले में लगा रहा, मुताले में मसरूफ रहा। पहले रोशनी का इंतजाम कैसे होता था, आज तो बटन दबाया रोशनी हो गई, बटन दबाया बल्ब जल गए, बटन दबाया रोशनी चारों तरफ हो जाती है। पहले एक ज़माना था आप रात का और हमारा खुद ज़माना ऐसा गुजरा है कि मोमबत्तियाँ, लालटेनें और मेरे भाई ये लेप वगैरह वो जलते थे, तो उस ज़माने में भी कुछ रोशनी का इंतजाम होता होगा, तो वो रोशनी का इंतजाम था। उस रोशनी में वो मुताले में लग रहा था, रात भर वो मुताले में लगा रहा। लेकिन वो रात भर औरत उस तालिब इल्म को उस पर उसकी नजर रही, उसको देखती रही। वो तालिब इल्म मुताले में लगा रहा, मुताले में मसरूफ रहा, लेकिन बार बार वो अपनी उंगली को उस आग में दाखिल करता और जब तकलीफ हद से बढ़ती, तकलीफ बढ़ जाती और परेशानी होती और ज्यादा जलन महसूस होती तो वो अपनी उंगली को उससे हटा लेता। रात भर ये सिलसिला चलता रहा। तो वो रात भर औरत देखती रही। सुबह का वक्त करीब हुआ, रात में औरत यूं समझती रही कि शायद कहीं पागल है, दीवाना है, अपने आप को आग के हवाले कर रहा है। भला ऐसे भी कोई अपने आप को आग में डालता है, अपने आप को आग के हवाले करता है, ये खुद ब खुद अपनी उंगलियों को जला रहा है। ये सारा मंजर रात भर औरत देखती रही। लेकिन सुबह का वक्त हुआ और फजर की अजान का वक्त हुआ और करीब था कि फजर की अजान हो। वो तालिब इल्म खड़ा हुआ और औरत के करीब आया और आकर यूं कहा कि देखो अब जरा सा माहौल भी ठीक है, पुरअमन माहौल है, तो मस्जिद से निकलो और जरा यहाँ से घर चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए और गलत तस्वुर करें, कहीं ऐसा ना हो लोग गलत तस्वुर करें। आजकल तो मेरे भाइयों अच्छी बातें तो जहन में नहीं आती, गलत बातें फौरन जहन में आ जाती हैं। आने वाले मस्जिद में दाखिल होंगे क्या कहेंगे, भाई औरत और ये मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब, इनकी तन्हाई और रात में इनका मस्जिद में रहना ये क्या माना है, ये क्या माना रखता है। रात की तन्हाई में ये क्यों इन्होंने मस्जिद में रहे हैं, क्यों मस्जिद में वक्त गुजारा है, ये जहन में बात पहले आती है। मेरे भाई वुसअत नहीं है, वुसअत नहीं है, जहनों में वुसअत खत्म हो गई है, जहन को दौड़ाते नहीं है, बस गलत चीजें गलत बातें वो जहन में फौरन दाखिल हो जाती हैं। अगर कोई आलिम या कोई नेक आदमी बेचारा कहीं से गुजर रहा है और वहां कोई गलत काम होता हो, कोई गुनाह का काम होता हो, तो फौरन जहन में आएगी कि गलत काम करके आया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये जहन में बात नहीं आएगी कि भाई हो सकता है इन्हें इल्म ना हो सकता है इन्हें मालूम ना हो, यहाँ से गुजर गए हो। तो इमाम साहब ने उस औरत से कहा तुम यहाँ से चली जाओ, लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल होंगे और गलत तस्वुर करेंगे, यूँ कहेंगे कि मस्जिद में क्या कर रही थी, बस तुम यहाँ से चली जाओ, लोग मेरे बारे में गलत तस्वुर करेंगे। वो औरत कहने लगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अपने घर पर अपना सफ़र तय करूँगी, अपने घर पर पहुँच जाऊँगी, मस्जिद से निकल जाऊँगी। लेकिन पहले मुझे ये बताओ ये मंजर जो मैंने रात भर देखा है वो मंजर क्या था? तुम अपने आप को आग के हवाले कर रहे थे,
तुम अपनी उंगलियों को आग में डाल रहे थे। भला ऐसे भी कोई अपने आप को, अपनी जान को हलाक करता है, अपने आप को आग में डालता है? मेरे भाइयों, ये तो खुदकुशी है, ये तो हराम है। अपने आप को आग के हवाले करना, अपनी जान को हलाक करना, ये जान अल्लाह की दी हुई अमानत है। इसको हलाक करने की, इसको मेरे भाइयों बर्बाद करने की और इसको हलाक करने की इजाजत नहीं है। जिसने अपनी जान को अपने आप से हलाक किया और खुदकुशी की, अपने आप को आग के हवाले किया, या अपने आप पर इतना जुल्म किया कि अपनी जान को गंवा दिया, कल क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा और अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। इसलिए जान अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसकी हिफाजत जरूरी है। तो मेरे भाइयों, उस औरत ने यूं कहा, अच्छा तुम यूं तो बताओ, तुम अपने आप को आग के हवाले क्यों कर रहे थे? पहले मुझे ये सारा मंजर बताओ, वरना मैं जाने वाली नहीं हूँ। अब बेचारे को इससे खतरा था कि जल्दी से बता दूं, और औरत ने यूं कहा कि जब तक नहीं बताओगे, जब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो और ज्यादा फिक्र होगी इस बेचारे को कि अगर न बताया ये यहाँ से नहीं जाएगी और लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे और सारा काम गलत हो जाएगा। बस उस इमाम साहब ने, उस तालिब इल्म ने यूं कहा कि देखो, असल में ये मेरे और अल्लाह के दरमियान में राज था, लेकिन तुम जाने वाले नहीं हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो उसके बाद उस तालिब इल्म ने कहा कि देखो ऐसा है, मेरा नफ्स, ये जो नफ्स है ना, इंसान को उभारता है, ख्वाहिशात आदमी को गुनाह की तरफ लाती हैं, उसको उभारती हैं कि गुनाह किया जाए, कोई देखने वाला नहीं है। मेरा नफ्स मुझे उभारता था गुनाह की तरफ, कोई देखने वाला नहीं है, मस्जिद में कोई नहीं है, कोई इधर उधर से हमारे ऊपर किसी की नजर नहीं है। मेरा नफ्स मुझे गुनाह की तरफ उभारता था। रात की तन्हाई है और औरत भी है, और तन्हाई में जो चाहे तो कर ले, जो चाहे गुनाह कर ले, कोई देखने वाला नहीं है। जब जब मेरा नफ्स मुझे गुनाह की तरफ उभार था, मैं अपने नफ्स से मुखातब होकर यूं कहता कि देखो, ये दुनिया की आग है और कल क़यामत में मेरे भाइयों वहां की आग में हमें जलना है। अगर तूने गुनाह का काम किया तो इस आग को पहले तो बर्दाश्त कर, अगर बर्दाश्त कर सकता है, और अगर तू इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर कल जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा? जब जब भी मेरा नफ्स मुझे गुनाह की तरफ उभारता और मुझसे यूं कहता कि तू गुनाह कर ले, तो मैं अपने आप को आग के हवाले करता और मैं कहता था अपने नफ्स से मुखातब होकर कि क्या तू इसे बर्दाश्त कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो फिर वहां की आग को, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा? तो मैं बार बार इसलिए अपनी उंगली को आग में डाल रहा था। पूरी रात ये सिलसिला जारी रहा। जब जब भी मुझे गुनाह की तरफ उभारा जाता, मैं अपने आप को आग के हवाले करता। यह है तकवा, यह है परहेजगारी। जब जब भी आदमी को गुनाह की तरफ आमादा होने के लिए उसका नफ्स उभारे, ख्वाहिशात उभारे, तो आदमी अल्लाह से डरे और ये जहन में पैदा करे और ये जहन में तसव्वुर पैदा करे, कल अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने जाना है। वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो शख्स अपने रब से डरा, अपने रब का खौफ जिस शख्स ने पैदा किया, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर जिस बंदे के और जिस इंसान के जहन में पैदा हो गया, नफ्स ने उसे उभारा गुनाह की तरफ और उसने अपने नफ्स को रोका, गुनाहों से रुक गया। तो कुरान यूं कहता है, व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन पर, कुरान पर, रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। कुछ वक्त 7 मिनट ज़्यादा हो गई है, जायद हो गई, लेकिन आप हजरात की तवज्जो रही, आप हजरात की शफ़क़त रही, आप हजरात की तवज्जो की बरकत से ये कुछ तालिब इल्माना बातें इस वक्त जहन में आई। जो बातें सही निकल गई हों अल्लाह अमल की तौफीक दे दे, जो जायद निकल गई हो अल्लाह माफ़ फरमा दे। ज़माना बड़ी मोहब्बत से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल